सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम गोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी बख्यान सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ताउमी साध न मारीऐ जिहा घाले घालना ते वेहो नाव पचारीऐ ऐसी कला ना खेडीऐ जित दरगह गया हारीऐ पढ़िया अतै ओमिया विचार अग्गै विचारीऐ मोह चलै सो अग्गै मारीऐ मोह चलै सो अग्गै मारीऐ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त मालक सहबे कमाल शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा बख्शिश की है जो इस पावन अस्थान ते गुरबाणी की लड़ीवार कथा चल रही है। गुरबाणी की पावन कथा नाल जुड़न का गुरु पातशाह जी ने सुभाग आपां नूं बख्शिश कीता है। आसा की वार दी जो 12वीं पौड़ी है पाठ आप जी ने सरवण कीता है। इस पावन पौड़ी के शब्द नाल जो उपर गुरु पातशाह जी के पावन अमृत वचन श्लोकां के रूप में दर्ज हैं। दुख दारू सुख रोग पिया जां सुख ताम न होई। पातशाह कहते जिहड़ा दुख है उन्हें दवाई बन के मनुख नूं जिहड़ा है सुख देना कीता है, पर जिहड़ा सुख सी वो रोग बन गया है। ते जदों मनुख नूं इस गल की समझ पै जाती है कि जिन्ना मैं सुख दे विच रहांगा उन्ना ही वड्डा दुख पैदा होना, तो फिर उहदे अंदर ये दुनियावी सुख की इच्छा नहीं रहिंदी। पातशाह जी फरमान करते हैं जदों मनुख नूं आत्मक ज्ञान हो गया फिर ये साधना करता है नाम जपदा है। तो पातशाह जी कहते उस नाम की बदौलत इसनूं ये समझ पै जाती कि सारी मनुखता का एको ही धर्म है, वह है परमात्मा विच अभेदता प्राप्त करनी।
ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਤਾਉ ਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਪਾਪ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋਥਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿ ਸਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਗਾਰਾ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਗੁਣ ਗਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
पर अज आपां वेखदे हां हस्पतालों दे विच जो हो रहा है, पढ़िया होवे गुनहगार, पढ़िया लिखिया बहुत है, कोई डॉक्टर बन गया एवें नहीं बन गया, पर जिहड़ा भी अज मनुख उन्हां दे कोल चला जावे, भावें वो सिर दर्द की दवाई लैण जावे, वो करोना बना के मार देंदे ने, अंग उहदे कढ लैंदे ने ते मुड़ के घरदियां नूं हत्थ भी नहीं लाण दिंदे, कहंदे इहनूं करोना हो गई, बीमारी हो गई है, इस करके मरिया है, कोई पुछ पड़ताल नहीं। महाराज कहंदे पढ़िया होवे गुनहगार, पढ़िया होया बंदा कितना गुनाहगार हो जाता है, बड़ा अगे लंघ जाता है। अनपढ़ बंदा ऐसा गुनाह नहीं करता, पर पढ़े लिखे इस तरह होर भी जिन्ने महकमे ने अज वो सब सारे दागदार हो गए ने, क्योंकि आत्मक ज्ञान कोल नहीं है। जो आत्मक ज्ञान है वो गुरु कोलों मिलना है। कुंभे बद्धा जल रह, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रह, गुर बिन ज्ञान न होए। जेकर बाहरली विद्या संसारिक विद्या नूं पढ़ के मनुख गुनहगार होया है, धर्म की विद्या नूं पढ़ के भी कोई धर्मी नहीं होया, क्योंकि गुरु की मत नहीं ली, मन नूं नहीं जोड़िया इस धर्म दे नाल। काजी जिहड़ा फतवा ला रहा धार्मिक बंदा, बड़ा पढ़िया लिखिया है, पर वेखो किड्डा वड्डा पाप कर रहा है, किड्डा वड्डा गुनाह कर रहा है। जद कि इस्लाम मत भी इस गल की इजाजत नहीं देता कि शीर कोल बच्चों नूं इदां शहीद किया जाए, जां बजुर्ग नूं जां बीमार नूं, ये इस्लाम मत भी इजाजत नहीं देता। पर वो इस्लामी मत ते आत्मक ज्ञान तो बड़ा परे है। इस्लाम मत का जो आत्मक ज्ञान है उस तो बड़ा परे है, बाहरों जरूर पढ़िया है। महाराज कहते ऐसा गुनाह करन वाला बंदा मता सोच ले, मैं धर्म की आड़ विच ये गुनाह करके बच जावांगा, अगे रब दे घर विच इहदा लेखा होना है। कोई भी मनुख ने गुनाह किया है धर्म का बाणा पा के, पातशाह कहते उहदा लेखा अगे होवेगा। पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साध ना मारीए। ओमी साध ओम शब्द वाहिगुरु परमात्मा वास्ते वरतिया गया है। जो मनुख नूं होर धर्म का कोई इलम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, ना उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने आउंदे ने, पर वो जप रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, जां ओम जां राम जां अल्लाह, रब का कोई भी नाम जप रहा है। पातशाह कहते उन्होंने अगे मारनी पवेगी, क्योंकि उहदे कोल आत्मक ज्ञान है, उहदे कोल सच्ची सुच्ची जिहड़ी है भगती है। परमात्मा के घर विच ये नहीं वेख्या जाना मनुख किन्नी इन्हें दुनिया की विद्या प्राप्त की है, जां किन्ने धर्मां दा इहदे कोल ज्ञान है, किन्ने धर्मां दी इहदे कोल नॉलेज है। उत्थे वेख्या जाना है भी इन्हें जीवन विच कमाया की है। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज तमाम दुनिया नूं ये उपदेश करते हैं, तू किसी भी धर्म नूं मनण वाला है, रब का कोई भी नाम तू रसना तो जपदा है, ते पातशाह कहंदे उत्थे वाहिगुरु दे घर विच ये नहीं वेख्या जाना तू किहड़े धर्म नाल संबंधित सी, किहड़ी जात नाल संबंध सी। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवें, जिनकी लेखा पत पवै चंगे सही के। उत्थे ये नहीं वेख्या जाना तू किन्ना पढ़िया, किन्ने धार्मिक ग्रंथ पढ़े ने, उत्थे ये वेख्या जाना तू अमल की कीता है। रोज़ आपां पढ़दे हां चंगियाइयां बुराइयां, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। उत्थे केवल महाराज सिख नूं नहीं कहा, ना तो किसी का लिया ही नहीं है। भावें किसी भी मनुख धर्म नूं मनण वाला है,
महाराज कहते उत्ते तेरियां चंगियाइयां ते बुराइयां वेखियां जानियां वाचियां जानियां ने। कर्मा करके कोई रब दे नेड़े हो जाता है, कर्मा करके कोई रब दे दूर चला जाता है। जिस तरह के कर्म करता है, ये तो आप दुनियावी तौर पर भी वेखते हाँ। रिश्ते दे विच भावें किन्ने भी सगे हुंदे ने, पर कर्म ऐसे कीते कि रिश्तेदारों तो बड़ा दूर हो गया। कोई पुछदा है भी वो तुहाडे घर नहीं आउंदा जी, वो बंदा साडे नाल उहने ये माड़ा व्यवहार कीता, साडे नाल उहने माड़ा कर्म कीता, इस करके असीं उहदे नालों रिश्ता नाता तोड़ लिया, दूर हो गए उहदे तो। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्मा दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ते कोई रिश्तेदार भी नहीं सी साडा, पर वो साडे हर एक फंक्शन ते आउंदा है, हर एक प्रोग्राम ते आउंदा है, असीं भी उहदे जांदे आ। कारण कर्म उन्हें ऐसे कीते साडे नेड़े हो गया। कर्मा करके कोई नेड़े हो जाता है तो कर्मा करके कोई दूर हो जाता है। यही गल रब दे घर भी ढुकदी है। कोई कर्मा करके रब तो बड़ा दूर हो गया, विथ पै गई, तो कोई ऐसे कर्म कीते जिहड़े रब दे नाल मिला देंदे ने। तां ही ते बाबा फरीद जी कहंदे ने कि फरीदा अमल जे कीते दुनी विच से दरगाह आए कम, वो तेरे दरगाह विच कम आउणगे। फरीदा जिनी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थीवई साईं दै दरबार। रसना तो केवल रब रब जपना ही भगती नहीं है, तेरे कर्मां विच भी वो भगती आउणी चाहिदी है। तीन तरह की भगती का स्वरूप दसिया है, तां कंप्लीट होंदी मन बच कर्म प्रभ अपना ध्याई। मन करके तू रब दे मार्ग ते चलना है। मनुख दुनिया नाम बड़े जापरी, पर एक कर्म करके जापरी, दो कर्मां विच साडे नाम नहीं आया। एक मन है, एक बचन और एक कर्म। ये तिन्ने थावां ते भगती होवेगी तां रब दे दर प्रवान होवेगा। बचना करके भाव रसना करके तो आप जपी जा रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बाणी पढ़ते हैं, बाणी विचारते हैं, पर साडे मन ते उहदा कोई असर नहीं है। मन ते कोई असर नहीं होया, मन विचों शरधा नहीं। आपां दूजिआं नूं कहंदे आ नानक चिंता मत करो चिंता तिसीए, पर आपां आप बड़ी चिंता करी ने बाणी पढ़ के भी। नाले कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, रब कह रहे हैं चिंता ना कर, पर आपां दूजिआं नूं कहंदे आ भी चिंता ना करो। आपां आप सारे टब्बर की चिंता चुकी फिरदे हैं। भाव पढ़िया जरूर है, पर साडे मन विच ये गल नहीं वसी। फिर साडा जिहड़ा कर्म है, व्यवहार है, वेखना भी मुख दा माड़ा है। इहदियां अखां विच भी मलीनता आ गई। ये संसार महाराज कहदे ये जिहड़ा संसार तुसीं वेखदे हो, तुहाडीआं दृष्टि दे विच मलीनता है। ये विस संसार तुम देखदे हर का रूप है, अरूप नदरी आया। ये विस रूप दिखाई दे रहा है, माड़ा दिखाई दे रहा है। ते रसना नाल माड़ा बोलते हैं, कन्ना नाल माड़ा सुनते हैं। साडे कर्मां विच भी बाणी नहीं आई, ना तो साडे मन विच वसी, ना साडे कर्मां विच आई। रसना करके जरूर पढ़ रहे हैं। महाराज कहते मन बच कर्म प्रभ अपना ध्याई। ये तिन्ने तरह करना पवेगा तां जाके प्रवान होवेगा। तो पातशाह कहते मनुख बड़ा पढ़ लिख गया, दुनियावी तौर पर धर्म की विद्या भी बड़ी पढ़ ली, पर उन्होंने मन विच नहीं वसाया, उन्होंने अपने कर्मां विच नहीं लियांदा। ऐसा मनुख किन्ना भी पढ़िया होवे गुनाह करेगा ही करेगा।
वो पाप करेगा ही करेगा। और बड़े बड़े पाप धार्मिक बंदियां ने कीते, जिन्होंने लोग धार्मिक कहते सी, वो बाहरों धार्मिक सी पर अपने कर्मां विच मन विच वो गल नहीं आई। महाराज कहते जिहड़ा अनपढ़ है, केवल ओम ओम जप रहा है जां वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहा है, उन्होंने कोई इलम नहीं ग्रंथां दे विच की लिखिया है, किन्ने प्रकार की विद्या, विद्या के की नेम ने, पर वो जपी जा रहा है वाहिगुरू। वाहिगुरू के घर विचों प्रवान होवेगा, उत्थे उन्होंने मार नहीं पवेगी, क्योंकि वो सच्ची सुच्ची भगती कर रहा है। महाराज कहते जिहा घाले घालना ते वेहो नाम पचारी है। जिस तरह की मनुख घालना घालदा है, उस तरह का नाम पै जाता है। कोई दुध वेचता है, लोग दुध ही कहन लग जाते हैं, हालांकि वो दुध नगर विचों इकट्ठा करके लिया जां अपने पशु रखे ने, पर वो घालना कोई एक दो दिन दुध लैके जावे, उन्होंने कोई दुध ही नहीं आखदे, रोज़ ही दुध लैके आउंदा है, लोग दुध ही कहन लग जाते हैं। रोज़ ही हलवाइयां वाली किरत करता है, मिठाइयाँ बनाता है, भोजन बनाता, लोग हलवाई कहन लग जाते हैं। जो भी काम रोज़ करन लग जाए, यदि जीवन में आ जाए, नित का कर्म बन जाए, नित की घालना बन जाए, उस तरह का नाम पै जाता है। तो मनुख रोज़ की कर रहा है, मनुख रोज़ पाप कर रहा है, रसना नाल पाप कर रहा है, कन्ना नाल पाप कर रहा है, अखां नाल पाप कर रहा, हत्थां पैरां नाल पाप कर रहा है। तो महाराज बाणी कहते पापी कर्म कमावदे करदे हाय 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 करते पे ने। दुनिया विच बहुतात गिणती में तुसीं किसी को चले जाओ, बस मनुख कहंदा हाय मर गए, हाय मर गए, कुछ नहीं पल्ले रहा, क्योंकि अंदर पाप ही कमाया, अखां नाल पाप वेखिया, कन्नां नाल पाप सुनिया, हत्थां नाल पाप कीता, रसना नाल पाप बोलिया, माड़ा बोलिया पाप हो गया। तो फिर मनुख दे इन्ना अंदर पाप है। तो महाराज कहते पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय। इत्थे भी ते अगे नानक ज्यों मथन मधाणियां त्यों मथे धर्म राए। जिवें मधाणी दुध नूं रिड़कदी है ना, इस तरह अगे रिड़के जाणगे, अगे दुख मिलेगा भारी। जिहो जी घालना करदा है, उस तरह का लोग ना दे देंदे ने। पाप कर रहे हैं तो मता सोची मैं गुरु को आके पुन्नी बन जावांगा, गुरु ने कहना पापी आ गया है। आप आमदे हैं ना, जे साढ़े अंदर पाप है जीवन में, तो आप गुरु को आके मत्था टेकांगे, गुरु ने कहना पापी आ गया है। रब दे घर जावांगे, उन्हें कहना पापी आया है। पाप कमावदियां तेरा कोई ना बेली राम। पाप की है? दूजे बारे माड़ा सोचना पाप है, माड़ा वेखना पाप है, माड़ा सुनना कन्ना नाल पाप है। तो आप अपने जीवन में हाथी मारीए आप सारे कि साढ़े मन में दूजे दे परसी दोष द्वैश नहीं चलती, पाप चलता है। किसी का माड़ा सोचना, रसना नाल माड़ा बोलना, कन्ना नाल माड़ा सुनना पाप। तो महाराज कहते पापी बंदा तो हाय हाय करता रहता, बस हाय मर गए, हाय मर गए। दुनिया की यही हालत हो रही है, क्योंकि पाप जिस तरह की किरत करता उस तरह का नाम पै जाता है। मता सोचिए आप किसी का गल वढ़िया है, किसी का पलाट मारिया, किसी का धन मार लिया है, तो गुरु की गोल में आके 10,000 20,000 पा दिए, लख पा दिए, तो आखी मैं पुन्नी बन गया। नहीं, गुरु ने कहना पाप है, तू पाप कीता है। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिस तरह का भी जीव कर्म करता उस तरह का यदा नाम पै जाता है। दुनिया दे विच वेखो कोई कपड़े सीवदा, लोग टेलर कहन लग जाते हैं,
ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਾਲਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜੇ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜੇ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਮੱਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜੇ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚੇਤ ਹੋ, ਐਸੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਖੇਡੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰੇਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਜੋ ਜੀਵ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਏ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੇਟ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2, 4, 5, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।